प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन में फाइलम एनेलिडा। लेमोर्क, a scientist Lamarck coined the name Annelida for ringed animals या animalcules in 1801। 1801 में लेमार्क एक साइंटिस्ट था जिसने इनका नाम एनेलिडा रखा। एनेलिडा कहते हैं ऐसे एनिमल्स को विच आर रिंग्ड। रिंग्ड मीन्स देयर आर 3 फाइला इन विच वी सी सेगमेंटेशन। एक है फाइलम एनेलिडा, दूसरा है फाइलम आर्थ्रोपोडा और तीसरा फाइलम जो है वो है फाइलम कॉर्डेटा। ये 3 फाइलम जो है एनिमल किंगडम में इनको सेगमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू बॉडी सेगमेंट्स। इनमें बॉडी सेगमेंट्स है लाइक वी कैन से हेड, नेक, ट्रंक, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन या ट्रंक जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए इनको रिंग्ड एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा और नंबर 1, एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 है देयर आर अबाउट 9,000 species of this phylum which are elongated, cylindrical, 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 vermiform and metamerically segmented। तो ये एनिमल्स जो है इस फाइलम के हैं, ये लंबे हैं, वर्म्स जैसे दिखाई देते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। दैट मीन्स द बॉडी ऑफ these animals is divided into segments। तो metamerically segmented means in which the body is repeatedly divided into numerous segments। These segments, the segments of these organisms, these segments are externally marked by grooves called annuli
and internally by septa। तो एक्सटर्नली ये इन एनिमल्स की ये सेगमेंटेशन जो है, ये सेगमेंट्स एक्सटर्नली हम इनको देख सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्रूव्स। These grooves are called annuli, and internally they are divided into parts by means of septa. These septa internally divide these animals into numerous chambers. Number 2, so this repeatedly segmentation of body is called metamerically segmented organisms or metamerism। इसको हम metamerism भी के नाम से भी पुकारते हैं। दूसरी क्या है? The annelids are bilaterally symmetrical coelomates with organ system level of organization and tube within tube body plan। तो इस पे क्या है? बायलेटरल सिमेट्री है इनकी। We can divide them into two equal hollows from top to bottom. They are coelomates, means they have a coelom in which digestive tract is suspended, visceral organs are suspended, और इनमें organ system of level of organization है। इसमें इनमें और tissues हैं, organs हैं, systems हैं। Therefore they possess organ system level of organization and tube with tube body plan कि इनके coelom में digestive tract suspended है। Therefore they have two openings, one is mouth, another is anus। तीसरी जो इनका कैरेक्टर है annelids के, the annelids are triploblastic, that is they develop from the embryos having three germinal layers, namely ectoderm, mesoderm and एंडोडर्म। तो ये ऐसे एम्ब्रियोज से डेवलप होती है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियोज में 3 लेयर्स बन जाती हैं। इन 3 लेयर्स से ये डेवलप हो जाती है। ये 3 लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो ऑर्गेनिज्म 3 लेयर से डेवलप हो जाएंगे उनको हम
ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जबकि 2 लेयर से डेवलप होने वाले ऑर्गेनिज्म्स उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जैसे सीलेंट्रेट्स। चौथा कैरेक्टर जो है इसका वो है दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। से पहले हम लिखेंगे the body wall consists of outer cuticle, middle epidermis, and inner muscular layer made up of longitudinal and circular muscles. This muscular layer also helps in locomotion in case of leech. तो ये चौथा पॉइंट था। चलो 5वां पॉइंट लिखते हैं। Alpha point, the digestive system is complete, which consists of mouth, pharynx, esophagus, stomach, intestine, and a posterior anus. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ, pharynx, esophagus, stomach, intestine and posterior। यह है जो टेल है जिसको हम पोस्टीरियर टेल कहते हैं। Therefore, digestion is extracellular. Digestion of food is extracellular और इंट्रासेल्यूलर। तो छठा पॉइंट जो है द
locomotory organs are parapoda in nares. The locomotory organs are parapoda in nares. CT, SETAE, CT or CHATAE, GT in earthworm and undulating momentous of muscles in leech. तो पैरापोडा एक किस्म के फुट जो हैं वो नैरीज में हैं, जिसके जरिए से ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है। सीटी या चीटी इन ग्रूव जो एनुलिया ग्रूव्स हैं इनके बाहर पर होती हैं, तो इनके जरिए से अर्थवर्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती है। और जो लीचेस हैं दे टेक द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर लेयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक और पॉइंट जो है वो है 7वां पॉइंट, द सर्कुलेटरी सिस्टम। 7th, circulatory system is of closed type with heart and blood vessels. In leech there is open type of circulatory system, open type of circulatory system. And blood is red in color, open type of circulatory system with blood is red in color, and this open type of circulatory system is called hemocoel. Blood is called hemolymph. सातवां पॉइंट जो है दैट इज 7th point, excretory system. Excretory system consists of segmentally arranged nephridia
Annelids are aminotelic. That means they excrete ammonia, or aminotelic, and excrete urea, excrete ammonia as waste product. Ammonia as waste product. They excrete ammonia as waste product. In some species, parapoda also help in excretion. 8वां पॉइंट है नर्वस सिस्टम. Nervous system consists of circumpharyngeal nerve ring and segmentally arranged गैंग्लियन. तो इनकी सर्कमफेरेंक्स के गिर्द होती है रिंग ऑफ नर्व्स, जिसको ब्रेन कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो इसके साथ साथ हर एक सेगमेंट में छोटा छोटा ग्रुप है नर्व्स का, जिनको हम गैंग्लियन के नाम से पुकारते हैं. तो इसके जो इंटीरियर पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, उसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं. सेंसरी ऑर्गन्स, इसी के साथ लिखेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स कंसिस्ट्स ऑफ टेस्ट बड्स जो टंग पर होती हैं, स्टेटोसिस्ट जो एनिमल को बैलेंस में रखते हैं, टेंटाकल्स, फोटोरिसेप्टर cells, and eyes with lenses. तो इसमें क्या होता है, टेंटाकल्स इसमें नहीं होती है. तो इसमें होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स. टेस्ट बड्स इनकी होती है, जो इसके माउथ की कैविटी है उसमें टेस्ट बड्स होती हैं. तो ऑर्गन ऑफ सेंस है वो, तो सेंसरी ऑर्गन में आता है. स्टेटोसिस्ट होता है जो इसको एनिमल को बैलेंस रखने में मदद देते हैं. फोटो रिसेप्टर्स होती हैं इसके मतलब जो इसमें जो लाइट रिसेप्टर सेल्स होती हैं. तो और इसमें आईज भी होती हैं, तो जो इसको मदद करती हैं, जो इसकी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. नाउ पॉइंट, इन annelids respiration takes place through general body सरफेस. जो रेस्पिरेशन होती है, जो यूजुअली जनरल बॉडी सरफेस से होती है. पैरापोडा इन सम स्पीशीज आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन केस ऑफ लंगवर्म एंड टर्बिला. ब्रैंकियल respiration
also takes place in bronchial respiration also takes place in lungworm and in lungworm and टर्बिलेरिया या टर्बिला इसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होती है एट्स्ट्रा में. तो पैरापोडा also help in respiration in case of nares. अब है reproduction. Annelids usually Annelids usually reproduce asexually by fission and budding. Regeneration is quite common in case of these earthworm and leech. Regeneration means a type of fission. Regeneration is quite common in earthworm and leech. In regeneration means the organism develops from, if it loses some part of its body, it can regenerate it, or we can say it can redevelop it. तो छठा पॉइंट है, 11वां पॉइंट annelids or maybe monoecious. Annelids may be monoecious or hermaphrodite as earthworm monoecious. एक ही में दोनों सेक्सेस है, मेल भी खुद है, फीमेल भी खुद है. और dioecious और bisexual. इसको हम मोनोसेक्सुअल भी कहते हैं. इसको हम कहते हैं मोनोइशियस और हर्माफ्रोडाइट. ये डायोसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल. डायोइशियस और बाइसेक्सुअल. तो इसमें दोनों सेक्स होते हैं. एक ही में अगर दोनों सेक्स होते हैं उनको हम कहते हैं डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल. मोनोइशियस, हर्माफ्रोडाइट, डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल. ऐसे. तो इसमें फॉर एग्जांपल इसमें डायोइशियस जो है जिसमें अलग अलग सेक्सेस हैं, एक में एक सेक्स, दूसरे में दूसरे सेक्स है, इसको हम देखते हैं ये है नारीज में. फॉर एग्जांपल नारीज. ठीक. 12th point. Fertilization is external. Fertilization is external. That is
ओविपेरस, ओविपेरस। इसमें एग्स बाहर आते हैं पानी में, तो वहां ही पर फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट is direct in earthworm, earthworm में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, zygote डायरेक्टली डेवलप होता है into adult, while direct in earthworm, while as it is indirect in nares, with the formation of trochophore लार्वा। इसमें ट्रोकोफोर लार्वा बन जाता है, तो ट्रोकोफोर लार्वा के बाद adult which metamorphoses into adult, trochophore larva which metamorphoses into adult. Developing direct in earthworm, while it is indirect in nares, with the formation of trochophore larva which metamorphoses. This larva metamorphoses and develops into adult. Examples are earthworm, Perithema posthema, leech, lungworm, etc. Important point एक और है, these annelids जो है, they live both in water, they are both aquatic, terrestrial, and some species are parasitic. Annelids are aquatic, both in fresh and sea water, terrestrial जमीन पर की होती हैं, terrestrial that is live in moist soil, and some species are parasitic like leech को हम पैरासाइट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जिस जगह से खून जम जाता है उसके साथ ये चिमट जाती है और वो ये खून वहाँ से एब्जॉर्ब करती है, सक करती है, तो इस लॉब में हेपारिन होता है। हेपारिन की वजह से ये जो जमा हुआ खून है ये तो फैल जाता है, इसमें ये जो कोगुलेशन है हेपारिन कोगुलेशन को खत्म कर देती है। ये लीच की एक खासियत होती है। तो इस तरह से इसके ये 13 कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आप गौर से इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान आगे ताकि हम आगे चलकर दूसरा टॉपिक पढ़ सकेंगे। बाकी वस्सलाम।